Welcome students, Subhash English School Digital Lecture Class 5th Subject EVS Chapter 3 From Tasting to Digestive। आज हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे, अपनी बॉडी से रिलेटेड एनर्जी, फूड कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करता है और टेस्टिंग टू डाइजेस्टिव के बारे में बात करेंगे। Jhampa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this Karela. Bitter Karela, bitter Karela guard, give me good jaggery and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Julan teased Jhampa, don't you get bored of only one kind of taste? Jhampa replied quickly, do you get bored with leaching imli turned? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli. Sure, I love the sure imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela, said Julan and looked at her mother. They both laughed heartily. जुम्पा किचन में भागी और अपनी माँ को पकड़कर कहा, माँ मैं यह करेला नहीं खाने जा रही हूँ, मुझे गुड़ और रोटी दो। माँ मुस्कुराई और बोली, आपने सुबह रोटी और चीनी खाई थी। झूलन ने जम्पा को छेड़ा, क्या आप सिर्फ एक ही तरह के स्वाद को टेस्ट करते हो क्या? जम्पा ने जल्दी से जवाब दिया, इमली चाट कर बोर नहीं हो जाते हो क्या? मुझे यकीन है कि सिर्फ इमली शब्द सुनकर आपके मुंह में पानी आ रहा है। मुझे यकीन है कि मुझे खट्टा इमली पसंद है, लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीजें भी खाती हूँ। मैं करेला खाता हूँ, झूलन ने कहा और अपनी माँ की ओर देखा और वे दोनों दिल खोलकर हंसे। Julan said to Jampa, let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is. Julan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jampa's mouth. So lemon, Jampa's replied quickly. Julan then pickled up a small pieces of jaggery. Her mother suggested crush it, otherwise she will know what it is. Julan crushed the jaggery, but Jampa easily guessed it. They played the game with different food items. Jampa could tell the fried fish even before tasting it. जूलन ने जंपा से कहा, चलो एक खेल खेलते हैं, तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में खाने के लिए कुछ डालूंगा, आपको बताना होगा कि यह क्या है। जूलन ने एक चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंद लेकर जंपा के मुंह में डाल दी। खट्टा नींबू, जंपा ने जल्दी से उत्तर दिया। जूलन ने फिर गुड़ का एक छोटा टुकड़ा उठाया। उसकी माँ ने सुझाव दिया, इसे कुचल दो, नहीं तो वह जान जाएगी कि यह क्या है। जूलन ने गुड़ को कुचला, लेकिन जंपा ने आसानी से अनुमान लगा लिया कि उन्होंने विभिन्न खाद्य पदार्थ के साथ खेल खेला है। जंपा ने तली हुई मछली को चखने से पहले ही बता दिया था। Julan said, now close your nose and tell me what this is. Jampa was confused. It is white, bitter, a little salty, and somewhat sour. Give me one more spoonful. Julan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jampa's eyes, and said, "Her it is it." Jampa laughed. "Yes, give me more." जूलन ने कहा, अपनी नाक बंद करो और बताओ कि यह क्या है। जंपा भ्रमित था।
हाँ वह यह थोड़ा कड़वा है, थोड़ा नमकीन है और थोड़ा खट्टा है। मुझे एक और चम्मच दे दो। झूलन ने एक और चम्मच पकड़ा हुआ करेला दिया। खुली हुई जंपो ने आंखें बंद कर कर और कहा, यह खाओ। और झूम हंसे और हाँ मुझे और दे दो। Neetu was giving a glucose drip. Neetu was very sick all day. She was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in the school, the teacher sometimes gave them glucose to drink, but what was a glucose drip? Doctor Auntie explained, your stomach is upset, your body is not keeping any food and water, it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. नीता बहुत बीमार थी, उसे पूरे दिन उल्टी आती रही और उसे दस्त भी लगी। उसने जो कुछ भी खाया था उसने उल्टी कर दी। उसके पिता ने उसे चीनी और नमक का घोल दिया। शाम तक नीतू को कमजोरी और चक्कर आ रहे थे। जब वह डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी तो बेहोश हो गई। उसके पिता ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि नीतू को अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, उसे ग्लूकोज ड्रिप देने की जरूरत है। यह सुनकर नीतू भ्रमित हो गई। वह जानती थी कि स्कूल में खेल की अवधि के दौरान शिक्षक कभी कभी उन्हें पीने के लिए ग्लूकोज ड्रिप देते थे, लेकिन ग्लूकोज ड्रिप क्या है? डॉक्टर आंटी ने समझाया, पेट खराब है, तुम्हारा पेट खराब है, आपका शरीर भोजन और पानी नहीं रख रहा है और यह बहुत कमजोर हो गया है। ग्लूकोज ड्रिप आपको बिना खाए भी कुछ जल्दी ताकत देगा। गुड Dr. Arpana has two patients, Rashmi and Kailash. Dr. Arpana talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. Rashmi, 5 years. She look about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly, stomach like a balloon. She often falls sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. Food, she is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. रश्मि 5 साल की है, शी लुक्स 5 साल की है पर वो दिखती 3 years old है। वो बहुत पतली है, स्लिम है और बहुत स्टमक उसका बहुत पतला है, बलून की तरह, और बहुत बीमार रहती है। वो हमेशा वो टायर्ड रहती है और स्कूल भी कभी कभी जा पाती है, रोज नहीं जाती है। वो उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है और उसकी जो खेलने की क्षमता है वो भी नहीं खेल पाती। फूड जो है उसको कभी दिन भर में या उसको एक रोटी या चावल मिल जाते तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी जो रश्मि है उसकी जो हालत है वो बहुत कमजोर है, 5 साल की है पर वो दिखती जैसे 3 years old की है। Kailash, 7 years old. He looks older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his legs. He is not very active. He goes to school by bus and spend many hours watching TV. Food, he does not like to eat home cooked food like dal, roti, vegetables and roti. The only things he finds tasty are chips, burger, pizza and soft drinks फ्रॉम द मार्केट। जो कैलाश है वो 7 years old है पर वो दिखता कैसे है? 7 years से ज़्यादा का दिखता है। तो उसकी क्या है, उसकी बॉडी फैट है, वो मोटा है थोड़ा
और उसके जो पैर है वो भी ज़्यादा मोटा दिखता है। वो एक्टिव नहीं रहता है क्योंकि वो दिन भर ऐसी बाहर की चीज़ें खाता है, तो वो ज़्यादा मोटा दिखता है और उसकी बॉडी हेल्दी नहीं है। और वो जो स्कूल जाता है तो कैसे जाता है, बस से जाता है, और ज़्यादातर बैठे बैठे घर में टीवी देखता है ज़्यादा। और उसका जो खाना पीना है वो कैसा है, दाल रोटी वेजिटेबल्स नहीं खाता है, वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, और मार्केट से जो आती है सॉफ्ट ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाता है। डॉक्टर अर्पणा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ चिल्ड्रन, देन शी टोल्ड देम देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स प्रॉपर। डॉक्टर अर्पणा ने बताया कि दोनों में जो प्रॉब्लम है, एक में हाइट की प्रॉब्लम है और एक में उसका वेट बता रहा है, तो दोनों में अलग अलग प्रॉब्लम है, दोनों को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। और जो कैलाश है वो तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है, घर का खाना खाना कम पसंद करता है, इसलिए हमेशा प्रॉपर फूड लेना चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए, दाल रोटी ज़्यादा खानी चाहिए, बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए। आवर बॉडी नीड्स energy to do to work, and we go energy to food contain many nutrients which help our body to grow and repair itself, keep up fight and healthy। हमेशा अपन को अच्छा फूड लेना चाहिए, अब प्रॉपर फूड करना चाहिए, जैसे दाल रोटी है, अपने को पल्सेस ज़्यादा खाना चाहिए हमेशा, जैसे बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर पाव भाजी है, ये जो ऑयली आइटम होता है, जो बाहर का जो ये चिप्स और ये होती है, अपने को कम खाना चाहिए, हमेशा प्रॉपर फूड लेना चाहिए। Kalandri district in Odisha. Gomti, 30 years old, Gomti works in the field of a rich farmer. For all her hard work, she get paid very little, so little that she cannot even buy enough rice to feed her family. Some months she does not get any work at all. Then she to eat leaves and roots from the jungle. Gomti's children are weak with hunger and always sick. Few years ago, her husband died of hunger. Most rice grows in Kalahandi district. Rice is even sent to other states from her. Many times the rice that keeps lying in the godowns get spoiled. In the same Kalahandi district, Kalahandi, there are many poor people like Gomti. Why do people die of hunger in such a palace? Kalahandi district उड़ीसा में है। गोमती 30 साल की है। गोमती एक अमीर किसान के खेत में काम करती है। उसकी सारी मेहनत के लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, इतना कि खाने के लिए भी उसका भरण पोषण नहीं कर पाती है, पर्याप्त चावल भी नहीं खरीद सकती। कुछ महीने के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर उसे जंगल के पत्ते और जड़ खाने के लिए, जो जड़ होती है और पत्ते होते हैं वो खाने पड़ते हैं। गोमती के बच्चे भूख से कमजोर हमेशा बीमार रहते हैं। कुछ साल पहले उसके पति की भूख प्यास से मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा चावल कालाहांडी जिले में पैदा होता है। चावल यहाँ से दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। कई बार गोदामों में पड़े चावल खराब हो जाते हैं। एक ही कालाहांडी में गोमती जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो यहाँ पे भूख प्यास से मरते हैं। और जैसे इस स्टेट में बहुत सारी ऐसी भूख प्यास वाली स्टेट है। थैंक यू। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।